पंजाब के जीके बारे आपां कुछ क्वेश्चन उन्होंने डिस्कशन करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन साढ़े कोल किहड़ा आउंदा है। दैट इज़ which one among the following landforms has been badly dissected with chows। ਚੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਚੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ दैट इज़ गुरदास पठानकोट पठानकोट गुरदासपुर और इस तो बाद SBS नगर ते नाल थोड़ा रोपड़ ते उस नाल अपना मोहाली वाला एरिया, ये सारे एरिया जो ने ये किते ना किते हिमाचल प्रदेश के नाल लगते इलाके ने। और ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਨਾਲ मोहाली वाला एरिया या SS नगर जिन्होंने कहने आप ये एरियाज आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूम सांग हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन टॉक्ड हाईली ऑफ विच एरिया ऑफ पंजाब। जो ह्यूम सांग हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਫਾਹਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਹਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ ਇਨ ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਵਰ ਲੈਡ ਬਾय whom of the following। ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਟਲ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਹਿਊ ਗੌਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰੌਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੀਅਰਸ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਊਂਡਡ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ। Which one of the following district is referred as the white gold? White gold, that means white gold ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਨਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਸੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Who was the first governor of Punjab after independence? ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1953 ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਮਾਧਵ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਈਸੀਐਸ ਆਫਿਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੂ ਲੇਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ? ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਪੰਡਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। 1924 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਥਿਊਮਸਲੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ। ਨਾਓ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨਾਵਲ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ,
ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਜਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੰਸਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ, ਰਹਿਗੋ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੋ, ਗਰੀਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਾਲ। ਕਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਔਰ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਕਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਨਾਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਇਹ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 170-74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ। The Punjab topped other states in India in the production of, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਅੰਗੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। According to the list published by National Disaster Management Authority, National Disaster Management Authority NDMA, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? NDMA। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NDMA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ 5 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸਿਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ which falls in ਸਿਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ 4। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਨ 2 ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਐਕਟਿਵ ਸਿਸਮਿਕ ਏਰੀਆ, 3 ਵਾਲਾ ਮੋਡਰੇਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਹਾਈ ਸਿਸਮਿਕ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਜ਼ੋਨ 4 ਐਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੋਨ 5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ 4 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 3 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ 5 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਰੇਨਫਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 600, ਕਈ ਵਾਰ 700, ਕਈ ਵਾਰ 800, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 460 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 960 mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Ancient city of Takshila was reported to house। ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ, ਓਲਡੈਸਟ ਮੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੀ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਲਡੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋ ਓਲਡੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਮਾਇਣ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਭਰਤ, ਔਰ ਭਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਕਈ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਭਰਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਤਾਕਾ ਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਫਾਹਿਆਨ ਐਂਡ ਹਿਊਨਸਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਦਾ ਮੁਗਲਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? 1536 ਇਹ ਤੋਂ 1739 ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। 1556 ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1526 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ 1739 ਜਾਂ 1799। 1799 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ 1739। ਕਿਉਂ 1739? 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1526 ਤੋਂ 1739। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1751 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ was ascetic who converted to Sikhism after meeting Guru ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Who converted to Sikhism after meeting Guru
ठीक है जी। ये सॉरी गुरु हरगोबिंद जी, ਇੱਥੇ इसको ठीक है जी, गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है जी। हु कन्वर्टेड Sikh after meeting Guru Har Rai ji, who converted Sikhism after meeting Guru Tegh Bahadur, who converted Sikhism after meeting Guru Gobind Singh ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Punjab was annexed by the British East India Company by Treaty of Amritsar in 1849, Treaty of Lahore 1869, Treaty of Amritsar in 1846, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 1845 ਤੋਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 1849 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਐਬਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਬਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ 1849। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਕੇਮ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 1966 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹ 1966 ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Anandpur Sahib resolution asked for granting maximum autonomy to the region of Punjab and other states, merger of Himachal Pradesh and Punjab, making Punjab an official language of Punjab and Haryana, granting autonomy to Punjab only. Anandpur Sahib resolution ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 1971 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ which was being led by ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਟੋਨੋਮੀ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1978 ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੀਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਐਜ਼ ਪਰ 2011 ਸੈਂਸਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2021 ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ 2011 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 57% ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2001 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 57% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ 2011 ਸੈਂਸਸ। ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਕਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਹੈ, ਪਵਾਦੀ ਹੈ, ਸੋਂਧੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਂਧੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अपने जीके के सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या दिए गए थे और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मम्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। ठीक है, बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है क्लास हमारे पास डिसीज का और उसकी वैक्सीनेशन, उसके सिम्टम्स का। ठीक है, प्लीज कोशिश किया करो पेपर में जाने से पहले इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करो, कैटेगरी वाइज। बैक्टीरियल डिसीज कौन से हैं, वायरल डिसीज आपके पास कौन से हैं, या फिर आपके पास फंगस डिसीज कौन सा, तो ये क्वेश्चंस याद रखा कीजिए। ठीक है, मम्प्स जिस कैटेगरी का डिसीज है वो आपके पास कौन सा है? वायरस है। ठीक है, वायरस की कैटेगरी का डिसीज है आपके पास मम्प्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी आर। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं क्लास? मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। 639 से ऊपर हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं क्लास। नंबर ऑफ मसल्स बॉडी में कितने होते हैं? 639। और इतने सारे मसल्स को बनाने के लिए आपको टिश्यूज चाहिए होते हैं, तो जब मसल ज्यादा टिश्यू भी ज्यादा होंगे तो मस्कुलर टिश्यू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए Which among the following is the richest source of ascorbic acid? ascorbic acid का सोर्स पूछा गया है। आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर ना क्लास एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको सारे एसिड और उसके रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है। ये चार्ट जरूर पढ़ना। ठीक है, लैक्टिक एसिड किसमें होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है, एसिटिक एसिड किसमें होता है, ये क्वेश्चंस आपको बड़े कॉमनली पूछे जाते हैं। और इतना छोटा सा टेबल है, कोई बहुत बड़ा टेबल नहीं है, छोटा सा टेबल है। ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुवावा। ठीक है, तो आप वहां जब इसको पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी कि कौन से तरीके का एसिड कहां पे पाया जाता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, डीपीटी इज अ वैक्सीन फॉर, देखो कॉमन सा ही नेम है। ठीक है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। छोटे बच्चों को इसके इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। ठीक है, वूपिंग कफ को 100 डेज कफ भी कहा जाता है क्लास। अगर कभी क्वेश्चन में पेपर आ जाए कि किस डिसीज को 100 डेज कफ कहा जाता है, ठीक है, प्रोट्यूसिस भी कहा जाता है इसको, तो वूपिंग कफ, टेटनस, डीपीटी की फुल फॉर्म। इसका वैक्सीनेशन आपको लगता है डीपीटी की वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर, द विटामिन विच इज वेरी लाइबल एंड इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग एज वेल एज इन द स्टोरेज। वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा आपके पास विटामिन है जो खाना पकाते हुए ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो वो आपके पास कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, दो कैटेगरी होती है क्लास विटामिन की, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा आपका फैट सोल्यूबल। कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज, है ना,
हमें जगाने के लिए काम आता है। आप कई बार ऐड भी देखते हो, नेस्कैफे, जागते रहो, ठीक है। तो कैफीन इज द मटेरियल जो आपको इसमें पाया जाता है। चाय में एक कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है, जिसको आप निकोटिन बोलते हो आपके पास, ठीक है। चाय में निकोटिन की मात्रा भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, बट कैफीन इज द मेजर कंटेंट। कोल्ड ड्रिंक्स में भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, कभी देखना उसमें कैफीन कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द गैस यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा वो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं आपके फ्रूट्स को, उसको फुलाने के लिए, उसको मिठास वगैरह देने के लिए, है ना। तो वो आपके पास इथाइलिन होता है जो आर्टिफिशियल रिपनिंग कर देता है। आर्टिफिशियल रिपनिंग मतलब समय से पहले ही फल को पका दिया जाता है ताकि उसे मार्केट में ले जाके बेचा जा सके, ठीक है। सो आंसर आपके पास क्या होगा, इथाइलिन। चलिए जी, रडार इज यूज्ड फॉर, रडार का पर्पस क्या है आपके, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है रडार के पर्पस पे, ठीक है। तो डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। हम कई बार कहते हैं ना, जैसे रफाल के बारे में पढ़ते हैं कि रडार को कैच नहीं करता है ये, ठीक है, रडार इसको कैच नहीं कर सकती। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब उड़ रहा होता है तो रडार होता है। समुद्र में के नीचे अगर आप किसी को कनेक्ट करते हो तो उसको सोनार कहा जाता है क्लास, ठीक है, SONAR, सोनार कहा जाता है। हवा में इसको रडार कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज। देखो, ह्यूमन ईयर्स की कैपेसिटी होती है 20 हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक सुनने की, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्ट में आपको पूछा जाता है कि आप कहां तक सुन सकते हो, कहां तक नहीं सुन सकते हो। उसके नीचे जो साउंड है उसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 हर्ट्ज, जैसे जो डॉग्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे भी सुन लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है आपके पास, इंफ्रासोनिक कैटेगरी में है, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक रेज हो जाती है। नेक्स्ट, मटेरियल्स फॉर द रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। वो कहता है आपके पास किस तरीके से आपको पता लगेगा कि जो प्रॉपर्टीज आपने यूज की हैं, ठीक है, जो रेन कोट्स में, टेंट में पानी नहीं टिकता है, पानी निकल जाता है, पानी अंदर नहीं आने देता, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से आप नहीं भीगते हो रेन कोट्स में। विच द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस, पूरे के पूरे हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा जो लाइटेस्ट गैस कंसिडर की जाती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे आपकी हीलियम आती है। इसीलिए हम स्पेस में जिन दो गैसेस का सबसे ज्यादा महत्व देखते हैं वो गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, द गवर्नमेंट लॉन्च विच स्पेशल मिशन फॉर डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेज मंगवाते हैं जो हमारे मोबाइल लैपटॉप्स के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। तो इसको भारत में बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है ताकि इसकी खपत डोमेस्टिकली हो, जीडीपी बढ़ेगी हमारी। तो वो आपके पास कौन सा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रूव्ड सेटिंग अप द इंडियाज फर्स्ट ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर इन विच स्टेट, ठीक है। आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है उसने ग्रेफाइन इनोवेशन को शुरुआत की है भारत में। करंट अफेयर से क्वेश्चन है क्लास। तो पहला ग्रेफाइन इनोवेशन सेंटर भारत में कहां बनाया जाएगा, केरला में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड कोयला एज अ इमर्ज्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। कोयला आपके पास एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो कौन सी कंट्री ने इसको डिक्लेयर किया है, तो आंसर आपके पास क्या है इसका, ऑस्ट्रेलिया ने इसको डिक्लेयर किया है। क्लास, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट है उसको याद रखा करो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार इसके, ठीक है। तो कोयला आपके पास ऑस्ट्रेलिया की एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, डैश became the first country to issue certification for unmanned air vehicles to operate in civilian airspace। यानी सिविलियन एयर स्पेस में सर्टिफिकेशन के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ आप UAVs को उड़ा सकते हैं। ये कंट्री आपके पास कौन सी है, इजराइल, ठीक है। इजराइल ने इसको शुरुआत की है, जिसने सर्टिफिकेट्स इशू किए कि सिविल स्पेस के अंदर भी आपके UAV उड़ सकते हैं, ठीक है, जिसको सो कॉल्ड आप ड्रोन बोल देते हो, ठीक है। चलिए जी, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पाई म्यूटनी। जब भारत देश में स्पाई म्यूटनी हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा,
लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कई लोगों को आंसर लगता है लॉर्ड डलहौजी है, बट लॉर्ड डलहौजी 1856 में रिटायर हो गए थे, इसलिए इनके समय में म्यूटिनी नहीं हुई। वो बात अलग है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि बहुत बड़ा मुख्य कारण माना जाता है तुम्हारे इस क्रांति का, वो लॉर्ड डलहौजी का ही कंसेप्ट था, लेकिन डलहौजी 56 में रिटायर हो गए थे, कैनिंग आ गए थे, और कैनिंग ही बाद में भारत के पहले क्या बनते हैं, फर्स्ट वॉइस रॉय भी बनते हैं। ठीक है, भारत का पहला वॉइस रॉय आपके पास कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, लॉर्ड रिपॉन का एक पॉइंट याद रखना क्लास, ऐसे भारत के वॉइस रॉय जिन्हें भारतीयों से सिंपैथी थी वो आपके पास कौन से थे, दैट इज योर लॉर्ड रिपॉन थे उस समय पर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, इल्बर्ट बिल सभी के समय में पास हुआ था, तो इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वाज पास्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी का अमेंडमेंट पूछा गया क्लास, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 101वीं अमेंडमेंट थी ये 2016 की, जिसके तहत आपके पास जीएसटी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्लैब्स ऑफ अंडर जीएसटी। ठीक है, या तो टैक्स 5% है, या 12% है, या 18% है, 9% वाला कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जीएसटी से ही रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। चलिए जी, ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, दिस रेशो इज नोन एज, इसको फुल फॉर्म में देखेंगे तो नाम भी क्या आ जाता है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, सीआरआर के तहत ही हम लोग अपने कुछ डिपॉजिट्स आपके आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, जो रिजर्व बैंक अपने पास खुद रखता है उसको हम एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, रेपो रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। ठीक है, जिस रेट पे बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास जमा करवा देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए, द रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन डिसाइड करता है रेपो रेट को, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। न्यूज पे आप देखते हो एमपीसी लिखा होता है हमेशा, इसको एमपीसी हैज डिसाइडेड टू रेज रेपो रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपके पास आपके सारे रेपो रेट्स, जो बाकी बैंक रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सबको डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक द रेपो रेट ऑन द May 4 by 40 basic point, taking it to the 4.40% with the immediate effect. What is the main objective of this hike? क्यों आपकी आरबीआई ने 40 बेसिक पॉइंट से आपका रेपो रेट बढ़ाया था? क्लास सीधा सा कंसेप्ट है इन्फ्लेशन, और मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेथड यही है, मार्केट से पैसा निकाल दो। मार्केट में जितना एक्सेस में मनी होगा उतना ज्यादा लोगों को अवेलेबिलिटी होगी मनी की, उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी इन्फ्लेशन होगी, उतनी महंगाई आएगी। उसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका यही है, मार्केट से पैसा सकअप करो। पैसा कैसे सकअप होगा, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हो। तो आप लोन नहीं खरीदोगे, लोन नहीं खरीदोगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं करो किसी चीज की, सप्लायर को रेट नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द यूएस फेडरल रिजर्व हाइक इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट on May 4 by the rare half percentage point. Where are the headquarters of the US Federal Reserve? तो वह फेडरल रिजर्व का जो ऑफिस है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। दुनिया में ओवरऑल इतनी महंगाई हो रही थी, डॉलर्स हाइक पकड़ रहे थे, तो लोगों ने डॉलर को बाईपास करना शुरू किया, अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करने शुरू किए, गोल्ड के थ्रू ट्रेड करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपके डॉलर को थ्रेट था। अब अगेन वही कंसेप्ट है, महंगाई बढ़ाने वाला, डॉलर की डिमांड बढ़ानी है तो क्या करो, मार्केट से डॉलर सकअप कर दो। तो इन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हो गई, अगेन डॉलर सर्वाइव्ड। ठीक है, चलो, एट विच प्लेस द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशनड इट्स सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन ऑन May 4। आपके कोस्ट गार्ड ने सेकंड स्क्वाड्रन अपना 845 स्क्वाड्रन जो है MK3 हेलीकॉप्टर्स का, इसको कमीशन किया है। ये कहां पर किया है, कोच्चि में। तो MK3 जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसमें इंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
A Kerala fintech company Open Financial Technology Private Limited became the India's 100th यूनिकॉर्न। भारत में कितने यूनिकॉर्न शो कर रहा है? 100। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 104 यूनिकॉर्न है हमारे पास, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यूनिकॉर्न वो होती है जिस कंपनी की वर्थ $1 बिलियन पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो प्राइवेट लिमिटेड है ये किस तरीके की कंपनी, कैसा स्टार्टअप है, ठीक है। ये नियो बैंकिंग भी करती है, वर्चुअल बैंकिंग भी करती है, डिजिटल बैंकिंग भी करती है। तो नए बैंकिंग का तरीका, नया देश, नया कल, नया डिजिटल सिस्टम, तो दिस इज ऑल दिस कंपनी यूज्ड टू डू। चलिए जी, ICGS कमला देवी built by Garden Research Shipbuilders Engineers Limited, that is Calcutta, was inducted into the Indian Coast Guard May 2 on Calcutta. What type of vessel it is? वो कहता है कि जो ICGS Indian Coast Guard कमला देवी जो आपने भी रिसेंटली एक ऐड किया वेसल, ये कैसा वेसल है? ये फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है क्लास, ठीक है। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, और बहुत तेजी से गश्त लगाकर उसको कवर कर लेना, दैट इज फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, रोनी ओसुलिवन जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने अपना 7th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है क्लास, ठीक है, 2 मई को। इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, ठीक है। रोनी ओ सुलिवन। चलिए जी, विच टीम्स लिफ्टेड द संतोष ट्रॉफी टू द विन द इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑन द 7th टाइम, ठीक है। दिस इज वन बाय द केरला, ठीक है। ये हमारा नेशनल टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, बड़ा जबरदस्त संतोष ट्रॉफी, तो यहाँ पे केरला ने इसको जीता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर डैश मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदू कैलेंडर और विक्रम विद संवत 2079। तो चैत्र के नवरात्र जब हमारे शुरू होते हैं, जब पहला नवरात्र होता है तो उसी से हमारा क्या शुरू होता है? न्यू ईयर शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हर्षदा शरद गरुड़, जिन्होंने अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट है। ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हमारी वेट लिफ्टिंग को। क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर्षदा गरुड़ का, ठीक है। ये आपको बड़े पूछने के बड़े चांसेस। जूनियर वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, हर्षदा गरुड़, ये पूछा जा सकता है, वेट लिफ्टिंग के अंदर इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए जी, वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डैश ऑफ द मई एवरी ईयर, ठीक है। पहला मंगलवार जब भी आपके पास होगा, फर्स्ट ट्यूसडे को आप क्या बनाते हो? अस्थमा डे। लोगों को अवेयर करना अस्थमा के बारे में, इसके प्रिकॉशंस के बारे में, इसके ओरल वैक्सीनेशन के बारे में, तो ये सबका पर्पस इसी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਆਨਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਲੱਸ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪਜ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? 6 ਲੋਕ ਹੈ, PQRST ਐਂਡ U, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ 6 ਪਰਸਨ, 3 ਜੱਜ ਹੈ, 1 ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਤੇ 1 ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? 3 ਤੇ 2 5 ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਓਕੇ। in the group there are 2 married couple, ठीक है जी। कोई भी मेल ना तो पेंटर है ते ना ड्रामेटिस्ट है, ठीक है जी। You is in old age, ठीक है, and he मतलब मेल है, lives with his married son are done। among the 3 judge husband of S, ठीक है जी। एक husband है S ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, earn more than, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ? ਐਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜੋ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ earn ਕਰਦੇ ਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਟੀ ਹੈ more than Q, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। the wife of one of the judge is dramatist, ठीक है जी। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਵਾਈਫ dramatist है, ठीक है जी। The painter earn less than her husband, ठीक है। husband in turn earns least among the judges, ठीक है जी। एक जज है जिसकी वाइफ पेंटर है अपने कोल, ओके। कौन होगा? क्यू। कोई क्यू होगा जो कि जज है और उसकी जो वाइफ होगी वो पेंटर है, ठीक है जी। पर अपन ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ जो पेंटर दी क्यू दी जो वाइफ है उसदे नालों घट लै रही है। द ड्रामेटिस्ट earn least in the group,
ठीक है जी, ड्रामेटिस्ट जज दी वाइफ ड्रामेटिस्ट, अपने को दो ही मैरिड कपल सी ਤਾਂ ਆਹ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਜੱਜ। ठीक है जी, तो अपना की चार्ट बन गया, आर दे ज्यादा, फिर टी, फिर क्यू, इत्थे की बचिया पी, फिर पी, ते सब तो घट कौन ले रहा है, एस। ठीक है जी, हु इज अनमैरिड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अनमैरिड कौन है, कौन बचिया, टी, है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੋ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ। Who is the husband of dramatist, कौन सी husband, R। एक बार पजल बन गया, फिर दिक्कत नहीं आती। सब तो ज्यादा सैलरी की दी, R दी, जो कि ऐसे husband सी। dramatist कौन सी, S सी, है ना। हाँ जी, वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ਆਪਾਂ किस दा मीनिंग दसना है, स्ट्रेन दा मीनिंग दसना है, किवें दसीए, स्ट्रेन दा मीनिंग दसना है ਆਪਾਂ, किवें दसीए, हाँ जी, play with tact, cope with stress, stress and strain, stress ते stress, इतो कट्टे जाऊगा, इधर और आंसर आएगा, है ना। stress की कॉमन निकलिया 7 7, इधर 4 और 9, डन। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, ऑपोजिट द क्वेश्चन है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਾਟ, O ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ L, A, F ਦਾ U, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, C ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। डायरेक्शन, रमाकांत किथे गया, नॉर्थ गया, फिर की किता, राइट टर्न लिता, फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिता, फाइनली आफ्टर वॉकिंग द डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर उन्हें फिर एक लेफ्ट टर्न लिता। ठीक है जी, ते हुण किस डायरेक्शन वाल जा रहे हैं, की कहोगे, वेस्ट वाल जा रहे हैं। हाँ जी, आशीष stands 15th from left, सचिन 7th from right। जे दोनों ने सीट नू इंटरचेंज कर लिया ते की दसिया, सचिन वुड बी 15th from right। टोटल बच्चे दसने हैं, किवें दसांगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, दैट इज 29। ऑरली करन वाले क्वेश्चन सी यही। assumption, एक नोटिस बोर्ड ते, a notice board at a ticket window, की लिखा हुआ है, प्लीज कम इन क्यू। की हुंदा है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਚ ਆਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ assumption ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, unless instructed people will not from queue, ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਿਊ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। people anyway want to purchase ticket, ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲकुल ठीक ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, both follow। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2021 ਵਿੱਚ ਥਰਸਡੇ ਸੀ। ठीक है जी, 2020 ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 19। चल ठीक है, आप जे मंडे चक्कीए 2019 जे मंडे है, 2020 की आ जाऊगा ट्यूसडे, 2020 ट्यूसडे नहीं आऊगा क्योंकि ये लीप ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया ना, तो इतने ट्यूसडे ना आके वेंसडे आऊगा। 21 की आया, नॉन लीप ईयर आया, तो की आ जाऊगा, थर्सडे आ जाऊगा, है ना। 21 क्या सी, ठीक है जी, तो अपना आंसर की आया मंडे। समझ आया मैं की किता, मैं बाय ऑप्शन चक लिया, मैं सपोज कर लिया जे 24 जून 2019 नु मंडे है ना, मैं की क्या कि अगले साल जो कि लीप ईयर है तो कितना ऐड हो जाऊगा, +2, फिर अगे नॉन लीप ईयर आया तो +1। इस तरीके नाल क्वेश्चन किता मैं। आशा टॉलर है बाबू तो, बट आशा छोटी है चेतन तो, डिंपल टॉलर है ईशा तो, ईशा टॉलर है चेतन तो। टॉलेस्ट दसना है कौन है, डिंपल, है ना।
चलो अगे बी सी छड़ के डी ई छड़ के एफ जी छड़ के एच आई छड़ के जे वाई एक्स डब्ल्यू वी 21 ऑप्शन बची जी। हाँ जी, ऑड वन आउट, हाई लो, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, वैली, डेप्थ चेक। डन। हाँ जी, जे थोनू दिक्कत आ रही होगी तो कैलेंडर का नहीं पता चलिया होगा क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक नाल हो गया। ते जे थोनू कैलेंडर का नहीं पता चलिया तो सानू साडे चैनल ते ही थोनू कैलेंडर की वीडियो भी मिल जूगी जिस तुसी पूरे कॉन्सेप्ट नू पढ़ सकते हो। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूं कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट have started but are not yet ready to use। कि आपके पास ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो कि आपने स्टार्ट तो किए थे पर कंप्लीट नहीं किए थे, वो कहाँ पे सेव होते हैं? ड्राफ्ट्स में, आउटलुक में, एड्रेस बुक में या सेंड आइटम में? आप लोग जानते हैं सेंड आइटम में तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि सेंड आइटम में तो कभी नहीं होगा, एड्रेस बुक में नहीं होगा, आउटलुक में नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? ड्राफ्ट्स। अनसेव्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं? ड्राफ्ट्स में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है यू कैन डैश सर्च बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन द सर्च इंजन कैन यूज टू सिलेक्ट अ स्मॉल मोर यूजफुल सेट ऑफ रिजल्ट। तो एक्चुअल में अगर आप लोग रिफाइन इंफॉर्मेशन करें, रिफाइन का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से लिखना, तो एक रिफाइन इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको वही चीज मिलती है जो कि आपको चाहिए होती है। तो इसलिए ये यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। स्टोरेज, स्टोरेज में बोला है डेटा लॉस होता है, नहीं होता है। स्टोरेज का मतलब होता है परमानेंटली स्टोर कर देना। इनपुट गलत, आउटपुट गलत, तो मेमोरी यहाँ पे यूज वर्ड किया जाएगा। अब स्टोरेज और मेमोरी में क्या फर्क है? स्टोरेज इज ए परमानेंट, स्टोरेज इज एन परमानेंट और मेमोरी इज एन ए टेम्परेरी। ये वर्ड याद रखेंगे कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क होता है। स्टोरेज होती है परमानेंट और मेमोरी होती है टेम्परेरी। ठीक है, तो इस वजह से आंसर डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, द डैश enable you simultaneously keep multiple web pages open in one browser window। तो आपके पास क्या चीज होती है जहां पे एक टाइम पे आप मल्टीपल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं? टैब बॉक्स, पॉपअप हेडर या एड्रेस बॉक्स। तो टैब बार आपके पास होती है या टैब रो आपके पास होती है जहां पे ये काम किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइसेस या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी यहाँ पे याद रखिएगा, ये नेम इंपॉर्टेंट है। एसएसडी इसमें आंसर तो नहीं बनेगा, पर वैसे आपको ये नाम याद होना चाहिए कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप लोग इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे डीवीडी का एग्जाम्पल पूछा था, तो सीडी डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्टिकल डिस्क। पर यह भी पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में हार्ड डिस्क को रिप्लेस इसने किया है, वो है एसएसडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर द डेटा एक्सेल इज कॉल्ड सेल। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ये एक एमएस एक्सेल में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है, बट वी कॉल सेल। ठीक है, तो आंसर इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलोटिंग। अलोट तो मतलब बांटना होता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। क्रैशिंग भी नहीं होगा, क्रैश का मतलब होता है ठप हो जाना। और ट्रैकिंग, ट्रैक का मतलब होता है नजर बना के रखना। तो फॉर्मेटिंग
यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि फॉर्मेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है डिवाइड करते हैं सेक्टर और ट्रैक को। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड कार्ड। तो यहाँ पे आंसर है मिडी, MIDI। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका एग्जांपल, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, FTP या JPG। तो अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि इंटरनेट के थ्रू आप कोई फाइल अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं, जिसको कि आप डाउनलोडिंग बोलते हैं। अपलोडिंग का मतलब होता है डालना, अपलोडिंग का मतलब होता है डालना, पर यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने सिस्टम पे लेके आएंगे तो वो होता है डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग का मतलब होता है कि आप लोग किसी को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर की बात करी है, आपके कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। अपलोड का मतलब अप करना है, FTP का मतलब FTP जो होता है ये प्रोटोकॉल होता है। FTP क्या है, प्रोटोकॉल, इसके थ्रू ही ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होता है। ठीक है, अपलोडिंग ही इसके थ्रू होता है। तो JPG के भी पूछ लिया जाता है। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका नाम होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये याद रखेंगे, कई बार इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो वो आप लोग बता देंगे। और FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका कि फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज द कम्युनिकेशन लिंक to the internet that provide help and understanding to the internet end user is known as presentation information technology program या FTP। FTP के थ्रू तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए होता है, प्रोग्राम तो इजी बनाते हैं, और प्रेजेंटेशन तो शो ऑफ के लिए होता है। तो कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, और ये सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। ठीक है जी, तो चलिए क्लास जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छी चल रही है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑनलाइन मॉक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ के पार्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए ट्रेन 75 meter long overtake a person who was walking at the speed of 6 km per hour in the opposite direction and passed him in 7/1/2 second। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि अगर एक ट्रेन किसी एक पर्सन को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस करती है, ट्रैवल करती है खुद के लिए। ठीक है, उसने 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहां से रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना चाहूं, डिवाइड बाय, देखो 7/1/2, 7/1/2 को मैं लिख सकता हूं 15/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं 15/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 पे, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगी वो 36, जो रिलेटिव स्पीड है इसको भी कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 18 × 2 जो रिलेटिव स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है।
रिलेटिव स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें पर्सन की स्पीड हमारे पास 6 है, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, it overtake a second person walking in same direction as the first train and pass the in 6 3 by 4 6 into 4 24 plus 3 27। तो यहां से अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी 27 into 4, ये रिलेटिव स्पीड हो गई मेरी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये आपका बनता है 100/9 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दूं तो इसको ये डिवाइड करेगा 20 पे, 9 इसको डिवाइड करेगा 2 पे, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब अगर वो 40 है तो दूसरा कितना होगा आपका 10 हो जाएगा, तो 10 होगा तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के ऊपर डिपेंड करता था आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए मशीन पी कैन टाइप 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। अगर हम बात करें पी की तो वो कितने टाइम में करता है 8 आवर्स में। मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स, और जो मशीन क्यू है वो 10 आवर्स में करती है, वाइल मशीन आर कैन प्रिंट देम इन 12 आवर्स, और आर जो करती है वो 12 आवर्स में करती है। ऑल द मशीन्स are started at 9 am while machine P is closed at 11 am, and the remaining two machines complete the work approximately at what time will the work to print 1 lakh books be finished। ठीक है, देखो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो इनका एलसीएम कितना होगा 120 होगा। ठीक है, 8 10 और 12 का एलसीएम 120, तो P की एफिशिएंसी 15, Q की एफिशिएंसी 12 और R की एफिशिएंसी क्या हो गई 10। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 37 हो गई। ठीक है, उसके बाद 9 बजे इनको स्टार्ट किया गया और 11 बजे पी को क्लोज कर दिया गया, मतलब आफ्टर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में अगर हम बात करें तो इन्होंने कितना 74 यूनिट वर्क तो कर दिया था आउट ऑफ 120। ठीक है, अगर मैं यहां से टोटल रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो टोटल रिमेनिंग वर्क जो मेरे पास है वो 46 है, और 46 जो वर्क है वो 22 के एफिशिएंसी से होगा, 22 के एफिशिएंसी से होगा। अप्रोक्सीमेटली इसको पूरा 2 एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड करेगा, तो यहां तो अप्रोक्स का बात की गई थी, तो अप्रोक्स 2, तो 11 + 2 1 PM, तो 1 बजे के आसपास वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 5x और 3x के रेशियो में है। उसके बाद क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एज 4 इयर्स एगो, तो ए की जो एज है वो 4 इयर्स पहले क्या होगी 5x - 4 होगी। ठीक है, एंड बी एज 4 ईयर हेंस, और बी की एज क्या होगी 3x + 4 होगी। इस 1:1 का मतलब है कि दोनों की एज क्या है इक्वल। x को एक साइड करो तो 2x किसके इक्वल हुआ 8 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a 20 और b की एज क्या है 12 है। ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ a इज आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 24। ठीक है, और b की एज 4 इयर्स आएगा मतलब 8, तो यहां से 3:1, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 16,500 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज दिस। 3 साल में इतना ब्याज मिला, 1 साल में कितना मिलेगा, पहले 1 पे डिवाइड करेगा, फिर 19 पे डिवाइड करेगा, 27 फिर 8 पे डिवाइड करेगा, मतलब 1 साल में जो ब्याज मिला वो 1980 रुपीज मिला। किसके ऊपर 1650 के ऊपर, 16,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम क्या है 1/100, 20 से 20 कैंसिल हो गई। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें पहले तो 1 पे डिवाइड करेगा 165। ठीक है, उसके बाद यहां से बचेगा आपके पास 333 बचेगा, तो 2 पे डिवाइड करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 12% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 12% आ गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड,
ठीक है, राउंड ऑफ 2 डिजिट, अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकते हो मतलब आप, ठीक है। अब देखो 12% अगर 3 ईयर के लिए लगा तो मैं कह सकता हूं सिंपल सा 36% तो मेरा कैलकुलेट होगा ही होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5, मतलब ये अप्रोक्स 4.5, अप्रोक्सीमेटली 40.5 के अराउंड कैलकुलेट होगा 40.5। तो देखो अब अगर मैं 6500 का अप्रोक्सीमेटली सबसे पहले 40% कैलकुलेट करूं तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये 6600 बनता है, ठीक है, और उसका 1% कैलकुलेट करूं तो अप्रोक्स 6680। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो 2:3:5। उन्होंने 2, 3 और 5 के रेशियो में पैसा लगाया। आफ्टर 2 months ए इंक्रीज हिज शेयर 20% एंड बी बाय 10%। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 1,90,500, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। देखो अगर हम बात करें कि ए, बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने 2:3:5 के रेशियो में पैसा लगाया। देखो जब भी अगर आपको रेशो दे रखा हो और उसके बाद कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो परसेंटेज को इजी बनाने के लिए क्या करो, सबके पीछे एक जीरो लगा दो, ठीक है। ये पैसा सिर्फ 2 months के लिए लगा था इन दोनों का, ठीक है। सी ने कोई छेड़खानी नहीं की तो मतलब इसका पैसा पूरे 6 महीने के लिए लगा था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया और इसका 20% कितना होगा, इसका 20 का 20% 4 होगा, तो मतलब अब उसने 24 रुपीज लगाए हैं नेक्स्ट 10 मंथ के लिए। बी ने 10% मतलब 33 रुपीज लगाए हैं नेक्स्ट 10 मंथ के लिए। चलो टोटल पैसा देखते हैं कितना बना और रेशियो क्या बना। तो ये तो हो जाएगा आपका 600, ये क्या हो गया 600 हो गया। देखो ये बना 330 प्लस 60 390, ये आपका बनेगा 240 प्लस 40 280, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारे पास सबका रेशो आ गया 28, 39 और 60। अगर मैं इनको ऐड करूं ये 100 बनेगा तो 127, तो मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो इसको 127 यूनिट की वैल्यू है, 127 यूनिट की वैल्यू है। उसने सी का पार्ट पूछा है आपसे, ठीक है, सी का पार्ट पूछा है। अगर सी का पार्ट पूछा है 18 9 7 6 16 6 7, ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, बाकी तो डिवाइड हो रहे हैं। चलो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तो बाकी तो हुए नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 127 से, पहले तो 1 पे ही डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 पे ही डिवाइड करेगा, उसके बाद बचेगा 635, उसके बाद 5 पे डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको पूरा पूरा ये 1500 पे डिवाइड कर रहा है, और 1500 इंटू 6, तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, सम मैंगोज आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 8 मैंगोज पर रुपीज एंड सम मोर मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 मैंगोज पर रुपीज। देखो उसने, हम कहते हैं कि चलो 8 आम खरीदे 6 रुपए की, 6 आम खरीदे फिर 1 रुपए की, तो टोटल उसने 14 खरीदे हैं 2 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नाउ द होल क्वांटिटी सोल्ड एट द रेट ऑफ 3.5 मैंगोज पर रुपीज, तो मतलब उसने 14 सेल कर दिए हैं इस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 14 इंटू 10 डिवाइड बाय 35, मतलब इस 140 को पूरा पूरा 4 पे डिवाइड करेगा तो 2 रुपए के खरीद के 4 में, तो 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। देखो यहां अक्सर मिस्टेक क्या होती है, देखो यहां अब उसने क्या बोला है, सम नंबर बोला है, और बुक्स में ये क्या गिवन होता है, सेम नंबर गिवन होता है, तो इसलिए सेम नंबर वाला पैटर्न इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। मोस्ट कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन ए सिटी इज 3:7। द चिल्ड्रन percentage among the male and female is 25% and 30%. If the number of adult male is in the city is 18,000, then find the population of the town। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 30 मेल है, या इसको x ही लेना, x ही ले लो, कि वो 3x और 7x है, 3 अगर ये 3x है, अगर यहां से 25% आपके चिल्ड्रन हैं,
तो इसका जो 75% होगा वो क्या होंगे आपके पास, मेल चिल्ड्रन हो, एडल्ट होंगे, एडल्ट मेल होंगे, और जो किसके इक्वल है, 18,000 के इक्वल है। ठीक है, देखो इसको डिवाइड करें 3 और 4 पे डिवाइड करेगा, 3 इंटू 3 9, 9 इसको 2 पे डिवाइड करेगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 8000, x की वैल्यू क्या आ गई 8000। देन द फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, देखो 7 प्लस 3 10, अगर x की वैल्यू ये है तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर होगा ये, आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शालिनी प्रेजेंट एज इज 5 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज, क्योंकि यहाँ शालिनी और उसके डॉटर की एज की बात की गई है, एंड द शालिनी एज प्रेजेंट एज टू हर फादर्स, शालिनी के फादर, शालिनी और शालिनी की डॉटर। ठीक है, शालिनी 5 टाइम्स है अपनी डॉटर की एज का। ठीक है, एंड द रेशियो बिटवीन शालिनी एज एंड फादर एज इज 5:2, ये रेशियो 5:2 है। तो हमें पता है कि शालिनी की एज सेम होगी, मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा उसके केस में 25, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो उनके तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास। इफ द एवरेज एज ऑफ द 6 ईयर हेंस, तो एवरेज एज 43 इंटू 3, तो 129 है। अगर इस 129 में से मैं 6 6 6 18 माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और टोटल देखो यहां से सबका सम 37 इसके इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर टू द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ शालिनी एंड हर फादर। ठीक है, देखो ये 6 है, ये आपका 30, और उसके फादर कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, डॉटर की एज और उन दोनों में जो डिफरेंस है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेगा, और इसको 15 पे, तो 2:15 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2:15 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, A man travel a distance of 61 km in 9 hours, partially on foot at the rate of 4 km per hour and partially on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance travel on the foot. तो जो उसने फुट पे डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। टोटल हमारे पास दे रखा है, देखो ये स्पीड कितनी है 4, बाद वाली स्पीड कितनी है 9, टोटल स्पीड की बात करें तो 60/9। ठीक है, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी और इधर भी, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो ये तो कितना आ गया 81 माइनस 61 20। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 20 आ गया, एक सेकेंड 20, और ये 36। अब हमें 61 में से 36 माइनस करना है, तो साफ साफ नजर आ रहा है आपका ये बनेगा 11, 11 प्लस 14 25। ठीक है, तो 40 और 50 टोटल, सॉरी कितना 61 किलोमीटर था हमारा, एक सेकेंड 61 किलोमीटर था, तो ये रेशियो आ गया 4:5। तो पहले वो 4 और 5, तो 4 गुना 4, किसने क्या पूछा था हमसे, फुट से, और फुट से कितने गया था 4 किलोमीटर की स्पीड से, 4 चौक 16। ठीक है, 16 किलोमीटर वो फुट से गया होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ 60 रुपीज पर केजी, 65 रुपीज पर केजी। ठीक है, दो इन क्वांटिटीज को मिक्स किया गया, किसके साथ 68.20 में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 110% की वैल्यू है। पॉइंट को रिमूव करूंगा तो ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करो, पहले 6 पे और 2 पे, तो 65 माइनस 62 3, और ये रेशियो 3:2। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, 3:2 आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन 2 स्कीम्स ए एंड बी in the ratio x and y, and they received equal interest from both the schemes after 3 years. If the rate of simple interest in both the schemes A and B
आर इन द रेशियो 7:5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो अगर आपका प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है और इंटरेस्ट इक्वल है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो प्रिंसिपल के इनवर्स होगा। आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देखो एक्स रुपीज लगे, मैं इसको स्मॉल एक्स लिख लेता हूं। ठीक है, ये एक्स रुपीज लगे, टाइम 1 लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इसको 7 ही मान लेता हूं, डिवाइड बाय 100, और यहां से जो इंटरेस्ट मिला वो y के ऊपर से 1 साल के लिए 5 मिला डिवाइड बाय 100। तो यहां से रेशियो लो, देखो आपका 5:7 ही बनेगा। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, कहीं भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए जॉब इन 30 डेज, कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए उन्होंने काम किया, देन बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो 20 दिन में उन्होंने 1/3 काम कर दिया होगा। अगर 20 दिनों में उन्होंने 2/3 काम कर दिया, 1/3 काम बचा जो उसने 20 दिन में काम किया। तो कहने का मतलब है जिस काम को ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं, अकेला ए उस काम को 60 दिन में करता है। तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा 60, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2, ए की एफिशिएंसी 1, तो बी की एफिशिएंसी भी क्या होगी 1, तो बी भी कितने टाइम में करेगा 60 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। कितने में करेगा 60 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 24 सेकंड, ए सेकंड ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ cross a platform in 30 seconds with a speed of 20% more than the first train. Find out the ratio of length of the train and the length of the platform. Length of train और length of platform का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो अगर पहले ट्रेन की लेंथ L है तो उसने एक पर्सन को 24 सेकंड में क्रॉस किया, तो मतलब उसकी स्पीड ये रही होगी, उसकी स्पीड ये रही होगी। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें कि अब जो सेकंड ट्रेन है ना, उसने डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल किया है L प्लस 30, ठीक है, और 30 सेकंड में किया है। ठीक है, कितने टाइम में 30 सेकंड में। अब ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, और इस स्पीड का जो रेशियो है ना वो 5:6 है। इस स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है 5:6 है। ठीक है, अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू L बाई 24 इज इक्वल टू 5 इंटू L प्लस 30 डिवाइड बाई 30। देखो 6 से डिवाइड करो, इसको 4 पे डिवाइड करेगा, इसको ये फिर 6 पे डिवाइड करेगा, तो 2 और 3। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 3L किसके इक्वल आ जाएगा 2L प्लस 60 के। तो L की वैल्यू क्या आ गई 60, मतलब लेंथ ऑफ जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन है वो क्या है 60, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आपकी 60 है। ठीक है, अगर मैं यहां 60 ऐड करता हूं, 60 प्लस 30, सॉरी एक सेकंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये 30 तो टाइम था ना, हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेना था यहाँ पे। सॉरी ये कैलकुलेशन हमने सारी गड़बड़ कर दी यहाँ से। एक सेकंड, यहाँ लेंथ ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अब ये 5:6 में डिवाइड होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, अब L और P का रेशियो कैलकुलेट करना था। अब देखो अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इसको 4 पे डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड करेगा 6 पे, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ 2 और 3, तो ये 3L किसके इक्वल आ गया 2L प्लस 2P, और L किसके इक्वल आ गया 2P के इक्वल, तो L रेशियो P क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, 2:1। पहले थोड़ा सा हमने वो स्टेटमेंट 30 सेकंड को लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म समझ के ऐड कर दिया था, बट रेशियो तो हमसे प्लेटफॉर्म का और उसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो उसके बाद उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स A, B एंड C in the ratio 29, 20, 29, 27 or 32, the ratio of percentage of profit is 4:2:5 respectively. If the cost price of the article of A is equal to the cost price of the article B,
cost price of article A is equal to B and the cost price of article C is 480, then what is the overall gain? तो उसको पूरे ट्रांजैक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ था हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उसने एक रिलेशन दिया है और उस रिलेशन को अपने को इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिट का रेशो है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस का रेशो है, इनके एक वेरिएबल इसके साथ लगेगा, एक वेरिएबल इसके साथ लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मेरे पास ए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये मेरे पास बी का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से जो सीपी की वैल्यू है, अगर यहां से जो सीपी की वैल्यू है उसको हम 100 एज्यूम कर ले, ठीक है, 100 एज्यूम कर ले और जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 4x और 2x है, तो क्या ये आपका 100 प्लस 4x और 100 प्लस 2x के रेशियो में होगा? ठीक है, अगर इसको y भी आप ले लेते हो, ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद सीधा सा x की वैल्यू आते ही y की वैल्यू आते ही यहां आप पुट कर दो, 32 इसके रिस्पेक्ट में है तो बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, दिस इज द वेट ऑफ ए इंक्रीज बाय 20% एंड देन द वेट ऑफ then the total weight becomes 132 kg with increase of 10%. B weight is increased by what percent? ये कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। A और B के रेशियो की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3:5। ठीक है, इसको मैं 30 और इसको 50 कर देता हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो एक एक जीरो लगा दो पीछे। इफ द वेट ऑफ ए इंक्रीज बाय 20%, अगर इसका 20% से वेट इंक्रीज करते हैं तो अभी ये वेट कितना होता है आपका 36 हो जाता है। ठीक है, और टोटल वेट अभी जो है वो 132 है। 10% इंक्रीज के बाद, तो 10% इंक्रीज के बाद वेट दे रखा है तो जरूरत ही नहीं है इसकी। सिंपल सा ये देखो कि अगर वेट पहले आपका 3x और 5x है, पहले 3x और 5x मतलब टोटल वेट कितना है 8x, और इंक्रीज होने के बाद 132 हुआ 10%, तो जो 132 है डिवाइड बाय 110 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आ गया 120, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 15, तो ये 45 और ये 15 इंटू 5 75। ठीक है, इसमें 20% इंक्रीज करोगे तो 9 का इंक्रीज होगा। ठीक है, और टोटल 120 से आपका 132 मतलब 12 का इंक्रीज हुआ था, तो 3 का इंक्रीज हुआ था 75 के ऊपर इंटू 100, तो ये कितना आएगा 4% का इंक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस ये कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। चलिए जी, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, we are to the English section of this mock. एक बार देख लेते हैं what we have in store for us in terms of the questions given to you, right? mock आपने attempt किया होगा, it was way too easy as usual. तो कहता है आपको बोल्ड में दिया हुआ है, आपको इसका करेक्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। अगर आपको लगता है बोल्ड वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है तो उसको नो इंप्रूवमेंट मार्क कर दीजिएगा, राइट? सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, लेट्स चेक। Most of the employees from Rajan's factory were not inclination to using. Were not है तो साथ में लग जाएगा third form which means inclined. Were not inclined हो जाएगा। Inclined कहाँ है? Inclined के साथ to use आ जाएगा, to be तो नहीं बनता है। ठीक है, तो बचता ही क्या, ऑप्शन सी। Followed by what we have is same correct substitute. All the allegations leveled against him were found to be baseless. Leveled देखो वर फाउंड है, वर पास्ट है तो सारा पास्ट में रहेगा। लेवल्ड, नॉट लेवल, नॉट लेवल, तो लेवल्ड और लेवल्ड यहीं पर है। ठीक है, अगेंस्ट लग जाएगा, आंसर इज नो इंप्रूवमेंट। तो बहुत सिंपल, द आंसर कम्स आउट टू बी नो इंप्रूवमेंट। फॉलोड बाय, आपको फ्रेजेस ढूंढने हैं जो करेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर से वही, ही डिड मेनी मिसचीफ्स, मेनी के साथ प्लूरल लगता है बट देयर इज नो वर्ड कॉल्ड मिसचीफ्स, तो डी ऑप्शन तो कट गया। फिर से मिसचीफ्स, फिर से मिसचीफ्स, द आंसर इज he made much mischief, right? फिर से he has said so out of affection, do not take it to heart. To heart ही बिल्कुल सही है, no improvement. By the heart, in the heart, in heart, no. Do not take it to heart. दिल पे मत लगाना, ऐसा बोलते हैं ना। Followed by 4 alternatives हैं, आपको चूज करना है करेक्ट मीनिंग idioms का। His letters to his ward speak volumes. अब देखो letters जो है वो प्लूरल है,
अगर लेटर्स प्लूरल है तो आपको बताना है स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब। ए ऑप्शन, शो इंडिकेशंस ऑफ, स्पीक इल ऑफ, आर इंटेंडेड टू इम्प्रेस। देखो स्पीक वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स इज मोर देन वन, तो आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो सी और डी बचता है। आर इंटेंडेड टू इम्प्रेस और सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी। देखो इम्प्रेस हर बार करेगा नहीं करेगा, हाउ डू वी नो, है ना? तो कहता है इट सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनी व्हिच इज कॉल्ड स्पीक वॉल्यूम्स। नेक्स्ट इज ही इज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग द कड, उसको आदत है कड को चबाने की, यानी कि द आंसर इज टू मूव ऑन, एक्यूजिंग अदर्स नहीं है, जो हो गई बात उस पर रोता नहीं है, फॉरगेटिंग टू मूव ऑन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, हाँ ये आपको बताना है व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स। द वर्ड इज इन फेसिंग एडवर्स सिचुएशंस ही वाज स्टोइकल, वो स्टोइकल था। टैक्टलेस उसको ऑपोजिट फ्लिंचिंग, ऑकवर्ड या एश्योर्ड, इट इज मोर लाइक उसको ऑपोजिट इज फ्लिंचिंग। फॉलोड बाय while facing that situation he turned out to be dauntless, वो तो dauntless निकला। अभी dauntless को opposite बताना है आपको फिर से, dauntless is तकड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना brave, उसको opposite हो गया cowardly। Adjective या adverb, I have dash finished writing the book, I have nearly finished writing the book। He is a highly intelligent boy, not high, he is a highly intelligent boy। अब देखो एंटोनिम्स बताने हैं। जाइजेंटिक ऑफ कोर्स बड़ा है ना, बहुत ह्यूज है, उसको ऑपोजिट बताना है, तो एक ही बचता है व्हिच कॉल्स अपॉन टाइनी। नेक्स्ट इज हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा हिचकिचा रहा हो उसका ऑपोजिट बताना है आपको, उसका ऑपोजिट होगा मतलब बंदा डेयरिंग है, पर यहां वो सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो डेयरिंग नहीं, फेवरेट, डाउटफुल। Hesitant का synonym is doubtful, uncertainty। Correct sentence, our showroom is opposite to the university आएगा, the legs can be removed आएगा, we were welcomed by a young boy of 12 years old, ठीक है, have you remembered to switch off the lights, answer is C। Correct preposition, the cup is full, अब देखो full of soup, full with soup, full OFF तो बिल्कुल नहीं आएगा, OFF is just परे कर देना, ठीक है। अब देखो कहता सूप से भरा हुआ है, तो सूप का भरा हुआ is called, it is full of soup। Before she dash you will have left, so दो will नहीं आते एक लाइन में, before she comes you will, there we go। I hope you enjoyed it, thank you, take care।